Yes. So today we are going to discuss some important set of MCQ related to the board examination class 10th. Number one, there are so many easy, moderate, and tough questions are there. So we are starting from this question. Now, dash is a template or a blueprint or a template for the multiple objects with similar features. Absolutely, this is class. Class एक template है, class is a template. This template can create a multiple object. मतलब many object belong to this template. Template means blueprint through which multiple objects can be created. It's just like a map of building. So on the basis of this map, multiple buildings, similar multiple buildings can be created. The wrapping up of data and function into a single unit is an example of the wrapping up of data and function into a single unit is called. The wrapping up of data and function under a single unit is called encapsulation. This is called encapsulation. Correct? Write down all tokens. What are the major tokens in the Java? Number one. Tell me. Keywords. Number two. Identifiers. Number three. Literals. Number four. Separators or punctuators. Separators and punctuators are the basically what? Number five, operators. ये सब हमारे tokens हैं. Our program is divided into several tokens. एक program हमारा कई tokens में divided होता है. So I have written few tokens. Just go through with these questions. इसके बाद है the object is also known as instance, right? Object एक physical manifestation है class का. क्लास जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, बट उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं. तो जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग इंस्टेंस कहते हैं. तो यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट कि ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. लो लेवल लैंग्वेज आर क्लोज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर. यस, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर से क्लोज होती है, बिकॉज लो लेवल लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 एंड कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी कोड which are in the form of 0 and 1. Done? Any doubt in this question? Yes. Okay. अब थोड़ा और हम लोग नीचे जा रहे हैं, ठीक है? Slowly we are discussing all the questions. Low level language in the form of 0 and 1, right? Dash is a feature by means which one class acquire the property of another class. कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रिंसिपल है जिसमें एक क्लास दूसरे क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है? दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. इट इज इन inheritance. Correct? Okay. The ability of a function or a object to take on multiple form. कोई ऐसी चीज जो मल्टीपल बिहेव करे मल्टीपल सिचुएशंस में. दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. क्योंकि पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म. तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस समथिंग व्हिच कैन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन. तो polymorphism. Sir, what are the real implementation of polymorphism? Practical implementation of polymorphism is function overloading. अगर हमसे पूछा जाए what is the practical implementation of polymorphism, this is function overloading. Function overloading means a class can contain multiple functions with the same name
but with different parameters. This is called function overloading. Also, we can say that the constructor overloading. Constructor overloading. Constructor overloading means when multiple constructors are existing in a class is called constructor overloading. Okay. In this sheet, I have covered all the aspects of Java, right? So this is very important sheet. Now, Disha, what you are trying to write? Just a moment. Please control your keys. Now, after that, look at this example. In the MCQ, अगर हम MCQ के बारे में बात करें, तो only theoretical part will not be covered. Maybe some conceptual questions and output question can also be covered in the MCQ. Now look at this. This is very important question. X is equal to true. So X is equal to true means true is a Boolean value. What are the Boolean values? Boolean values are either true or false. This is also called Boolean literals. हम एक क्वेश्चन से कई पार्ट्स कवर कर रहे हैं. तो if x, तो it means internally ये हो जाएगा if true, because the value of x is true. तो if true, यहाँ पे true आ जाएगा. If true मतलब the condition is true. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. और नॉट x, तो x की वैल्यू कितनी है? ट्रू. तो नॉट का मतलब होता है जो भी x में रिजल्ट है ये उसको इनवर्स और ऑपोजिट कर देगा. तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स. ओके. अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन नोट आल्सो कन्वर्ट दिस इनटू टर्नरी. हमें इसे टर्नरी में भी कन्वर्ट करना है. तो टर्नरी का मतलब होता है कंडीशनल ऑपरेटर. whatever we are doing in the if condition can also be written in a ternary, and whatever we are done in a ternary it can be converted into if else. दोनों में हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका करस्पॉन्डिंग टर्नरी क्या होगा? क्योंकि system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रहा है. तो we have to write like that. system dot out dot println is a short form. Now what about the condition? If x, तो x and क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो वी आर इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो वी हैव टू प्रिंट नॉट ऑफ एक्स और कोलन नॉर्मल एक्स. तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग टर्नरी ऑफ दिस इफ एल्स. टर्नरी में तीन चीजें होती हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन. दिस इज द वन थिंग, this is second, this is third. That's why it is called ternary. Ternary means three things. One is a condition, and second thing, after satisfying the condition, what will be the statement? तो ये हमारे condition satisfied होने के statements हैं, और कोलन के बाद हमारे ये unsatisfied होने के statements हैं. तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये if के statements हैं और ये हमारे else के statement हैं. ऊपर हम और थोड़ा सा इसको बता देते हैं. If STMT means if statement, and this one is else statement. Okay. Pre-board is very, very important. Pre-board is equivalent to your board examination, right? तो आपको इसको उसी इंटेंसिटी से अटेम्प्ट करना है जैसे हम बोर्ड अटेम्प्ट करते हैं. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट्स. आप अपने मोबाइल में इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड कंफ्यूजन यू कैन इंटरप्ट मी. क्लियर? कंट्रोल Z. अगेन अगर किसी को लेना हो स्क्रीनशॉट तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते. ओके, डन. नाउ क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी, मैंने क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि इफ सपोज इफ हैज अ कंडीशन. आई एम नॉट डायरेक्टली कमिंग टू दिस पार्ट, आई एम कमिंग लिटिल बिट. ठीक है, आफ्टर लिटिल बिट डिस्कशन. सी, इफ कंडीशन, अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं तो बाय डिफॉल्ट इफ के अंदर, व्हाइल के अंदर, फॉर के अंदर सिंगल स्टेटमेंट कंसिस्ट करता है. दिस इज अ रूल. ओके, तो अगर हम यहां पर लिखते हैं सपोज int x, ओके राइट, और हमने यहां पे लिख दिया x इज इक्वल टू 10, नो नीड ऑफ ब्रैकेट.
यहां पर ऐसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विदाउट ब्रैकेट जो है वो सिंगल स्टेटमेंट इफ के अंदर कंसिस्ट कर सकता है। बट देयर इज अ कंपल्शन, वो सिंगल स्टेटमेंट अगर आप इफ के अंदर कंसिस्ट करा रहे हैं विदाउट ब्रैकेट, तो वो एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। वो कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी स्टेटमेंट, इट कैन बी ऑफ एनी स्टेटमेंट, आइदर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, समेशन, प्रोडक्ट, एवरेज, कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। अगर आप इफ के अंदर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट दे रहे हैं, देन ब्रैकेट इज कंपल्सरी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो अगर आप इफ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो एक इनिशियलाइजेशन स्टेप है, तो फिर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने ऐसा दे दिया है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, दिस एरर विल कम ऑन स्क्रीन। ऑल राइट, if you have any doubt, within fraction of second we can test this code, fraction of second we can test this code in Java. Just I want to copy this, और कॉपी करने के बाद I am just opening a BlueJ, and there are so many things I have written, just delete it. 1 second please. See, we have to do a very systematic study because all the examinations are very close, and we are only doing a study for 100 out of 100, और ऐसा बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। Now this is my last sheet I have prepared. Now see, I'm compiling. See, variable declaration not allowed here. Do you understand? अगर ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट नहीं होता, कुछ और होता, ठीक है, कुछ और होता, जैसे मान लो, जस्ट अ मोमेंट, हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट नहीं करते इसको, हम कुछ और कर देते हैं, लाइक 1 सेकेंड, डी वहां है, और सॉरी, डी इज इक्वल टू 4 है। अब यहां पर अगर हम लिख दें डी प्लस प्लस, नो इट इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम, इट इज एक्सेप्टेबल, बट इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कराना है, सपोज यू वांट, ठीक है, तो तुमको ब्रैकेट देना ही पड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है। आई हैव मिस्ड दिस, ओके, सॉरी, इसमें एरर दूसरी आ गई है, ये वो दूसरी एरर है एक्चुअली, ठीक है। एरर दूसरी ये है कि आपने डी को यहां पर डिफाइन किया है, तो स्कोप्स की वजह से वो डी को यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो यही अगर आप डी यहां पर ले लें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट अ मोमेंट, नो इट्स एब्सोल्युटली फ्री, सॉरी, यहां पर एक इनिशियलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है, लाइक 2, और अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन वहां पर सिर्फ उतना था कि अगर कोई इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट देना कंपलसरी, ओके, और कंपलसरी है इस वजह से आपको वहां पर लिखना ही पड़ेगा, ओके। नाउ एक सेकेंड, एक चीज और हम लोग करके देखते हैं, इट्स अ मल्टीपल डिक्लेरेशन, ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, नॉट्स फाइन। अब यहां पर हम लोग वापस आते हैं और आने के बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। तो डिक्लेरेशन यहां पर अलाउड नहीं है इस तरह से, करेक्ट। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, जस्ट अ मोमेंट, द वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 3। हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, तो प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस ए मतलब दिस इज द प्री इंक्रीमेंट, तो ए की वैल्यू हम पहले इंक्रीज करेंगे, तो यहां पर टी आ जाए, ओके, सॉरी, बी की वैल्यू हमारी 2 है, आई हैव रिटन बाय मिस्टेक 3, तो 2 है, तो यहां पर 3 आ गया। नाउ 3 विल बी कंपेयर टू प्लस प्लस बी, प्लस प्लस बी का मतलब होता है फर्स्ट यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो 3 आ जाएगा, एंड 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 मतलब डबल इक्वल टू लगा हुआ है, और डबल इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर है। व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड डबल इक्वल टू।
and all the relational operator after applying they produce boolean result. They produce boolean result. तो इसका आंसर आपका ट्रू आ जाए. अंडरस्टैंड? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, अगर कहीं पर आप ऐसे लिखते हैं 4 डबल इक्वल टू 5, तो इन सब के कंपैरिजन के बाद जो भी बूलियन रिजल्ट्स हैं वो आएंगे, लाइक ट्रू, फॉल्स. ओके, 4 नॉट इक्वल टू 5, इसका भी आंसर ट्रू आ जाए. 4 इक्वल टू 5, इसका आंसर आपका फॉल्स है. इस तरह से जो रिजल्ट्स आएंगे वो आफ्टर चेकिंग द कंडीशन, ये सारे आपके बूलियन रिजल्ट्स कहलाते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स. ओके, नाउ 10 क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड. देयर आर 147 क्वेश्चन इन दिस शीट. ओके, तो बाइट ऑक्यूपाइड हाउ मेनी बाइट्स, अगर हम लोग बाइट की बात करें तो बाइट जो है वो 1 बाइट लेता है. तो बाइट है क्या, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले. बाइट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है. तो जावा में कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं? बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन. ओके, तो बाइट जो होता है, बाइट वो सबसे छोटा डेटा टाइप है. ये 1 बाइट लेता है, ये 2 बाइट, ये 4 बाइट और ये 8 बाइट्स. अब फ्लोट और इंटीजर का साइज सेम होता है, बट प्रिसिशन वाइज फ्लोट हमारा इंटीजर से डिफरेंट होता है. प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो फ्लोट में होती हैं और वो इंटीजर में नहीं. डबल और लॉन्ग का साइज एक होता है, तो 8 बाइट. कैर हमारा 2 बाइट है ड्यू टू यूनिकोड. यूनिकोड क्या है? एक कैरेक्टर सेट है जो जावा सपोर्ट करता है, जिसमें 65,536 कैरेक्टर्स आते हैं. बुलियन का साइज मैटर नहीं करता, बट 1 बिट होता है. ओके, फाइन. तो अब इसी से रिलेटेड हमारा एक और क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक साइड में चार्ट बना दिया. लॉन्ग ऑक्यूपाइड हाउ मेनी बिट्स. अब यहां पर बिट्स क्या है? तो लॉन्ग कितना लेता है? 8 बाइट्स. तो 8 बाइट्स लेता है और 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट्स. तो अगर हम इस 8 बाइट को बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 64 बिट्स विल बी द आंसर. तो देयर विल बी वन आंसर ए, दिस इज 64, और इसका आंसर हो जाएगा ए 1. 12 क्वेश्चन हैज बीन कवर्ड. स्टिल मतलब अप टू दिस एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर टाइम बीइंग. टोटली अ न्यू शीट. इससे पहले आपने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए. कुछ सिमिलर मिल जाएंगे. ठीक है. x is equal to a. Now what will happen? This is very important. ठीक है. अब 13 and 14 you have to try. 13 को ट्राई करो और 14 को ट्राई करो. तो 13 का आंसर क्या आएगा और 14 का आंसर क्या आएगा और 15, इन तीनों के आंसर्स आपको थोड़ा सोचना है, और सोचने के बाद फिर मैं आपको बता दूं. Your time starts now. Resume record. I am clearing screen. Just a moment. आराम से समझना है. इसको इस तरह से मत कंप्लीट करो कि बस हमें कंप्लीट कर लेना है. समझते हुए कंप्लीट करना है. सी, किसी भी अगर कैरेक्टर वेरिएबल में लाइक x में a है, तो अगर किसी कैरेक्टर वेरिएबल में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट करें या पोस्ट इंक्रीमेंट करें, प्री डिक्रीमेंट करें या पोस्ट डिक्रीमेंट करें. इन अदर वर्ड्स, अगर हम किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल पर कोई यूनरी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसमें अल्फाबेटिकल चेंजेस आते हैं. यानी प्लस प्लस एक्स करेंगे तो एक्स हमारा प्लस प्लस का मतलब है कि ए के बाद कौन सा कैरेक्टर आता है? बी. तो बी प्रिंट हो जाएगा. इसका आंसर होगा बी. बट अगर हम किसी कैरेक्टर में कोई इंटीजर माइनस या प्लस करते हैं
लाइक x क्या है, देखो x की वैल्यू क्या है, स्मॉल a, तो स्मॉल a में से तो 32 माइनस हो नहीं सकता, तो स्मॉल a की आस्काई वैल्यू, मतलब इंटरनली ये कैसे माइनस करेगा, x की आस्काई वैल्यू लेगा, तो x में क्या है, स्मॉल a, तो स्मॉल a की आस्काई वैल्यू होती है 97, और 97 माइनस 32 करेगा, तो 97 माइनस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाउ मच, 65. 65. Correct. Very good, Fiza. So 65 will be the Thank answer. you. So we have seen two different approaches here. One is अगर हम किसी कैरेक्टर में कोई यूनिरी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो आंसर विल बी अल्फाबेटिकल. बट अगर हम कोई वैल्यू डिक्रीज या माइनस करते हैं या प्लस करते हैं कोई वैल्यू, इट्स अ इंटीजर वैल्यू, तो फिर उसमें आस्काई वैल्यू में चेंजेस होते हैं, और वही आस्काई वैल्यू एज अ डिफरेंस आती है. अंडरस्टूड. आफ्टर कंपाइलेशन डैश कोड जनरेटेड, कौन से कोड, बाइट कोड, कौन से कोड, बाइट कोड. एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द बाइट कोड, सर हु इज रिस्पॉन्सिबल, जेवीएम और जावासी, जावासी, because javac is a compiler of java, and compiler of java always responsible for creating the byte code, क्योंकि जावा सी जो है वो हमारे प्रोग्राम के सिंटैक्सेस को चेक करता है, एंड अगर हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं, कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, तो जावा सी जो कि जावा का एक कंपाइलर है, हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, एंड आफ्टर दैट दिस बाइट कोड विल बी टेकन केयर बाय जेवीएम. जेवीएम इन बाइट कोड्स पे काम करता है. इफ यू टॉक अबाउट characteristics of Java, everybody must have idea of characteristics of Java. So there are few characteristics because next question is related to that. Java is a object oriented programming language. This is major. This is very important. This is very important. Number two, Java is object oriented programming language means all the important OOPS principles are existing in the Java, like class, object, encapsulation, polymorphism, inheritance. These are all important major characteristics, principles are existing in Java. So Java is an object-oriented programming language. Second important, Java is a platform independent programming language. ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है इफ द कंपाइलेशन इज डन इन वन ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस we have done compilation in विंडोज. कंपाइलेशन का मतलब होता है बाइट कोड जनरेटेड, देन वी कैन एग्जीक्यूट सेम प्रोग्राम इन लाइनेक्स. सर विंडोज क्या और लाइनेक्स क्या? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. दीज आर टू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम कंपाइल कर रहे हैं और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर उसको हम रन कर ले, तो इसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मींस आफ्टर राइटिंग अ प्रोग्राम, after compilation it can be execute on any different platform, बट ऐसा दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होता था, लाइक सी एंड सी प्लस प्लस. सी एंड सी प्लस प्लस आर नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, दे आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस. और ये क्यों पॉसिबल है? ये बाइट कोड की वजह से पॉसिबल है, बिकॉज बाइट कोड्स आर द सेम, बाइट कोड्स आर द सेम फॉर एवरी प्लेटफॉर्म. अंडरस्टैंड? Okay. Okay, third,
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। जावा प्रोवाइड्स सिक्योर कोड्स, मींस Java programming is completely secured, means any unauthorized person or hacker cannot take entry inside Java program. So Java programming is a very secured. Java provides light weight codes. मतलब जब भी हम जावा में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता, और अगर हैवी नहीं होता, जैसे हैवी की बात करें तो दो तरह के पर्सन होते हैं, एक हैवी पर्सन, एक स्लिम पर्सन। तो जो हैवी पर्सन होते हैं, ये हैवी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो हैवी सॉफ्टवेयर को रन करने में टाइम लगता है, ओके। और अगर वही प्रोग्राम हमारा जो है वो लाइट कोड पे हो तो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, और जल्दी एग्जीक्यूट होगा तो जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड। तो LIGHT, लाइट वेट कोड्स। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एज अ डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने कुछ फीचर डिस्कस कर लिए। जावा सपोर्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स। अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात करें तो उसमें 2 कमेंट्स लिखे हैं, बट 3 कमेंट सपोर्ट करता है जावा। एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट, एक डॉक्यूमेंट कमेंट्स। डॉक्यूमेंट कमेंट क्या होते हैं, जब अपना सॉफ्टवेयर सेल करते हैं तो हम डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखते हैं पूरा एक मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन कि हमारे सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज किया जाए, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या बाउंडेशंस हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, ये सारी डिटेल हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। तो जावा प्रोवाइड्स जनरली 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, एवरीबॉडी हैव आइडिया। सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स ऐसे, ओके। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट्स, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स, ओके। अब आता है विच वन बिलो इज अ कीवर्ड। कीवर्ड्स के बारे में एक बात तुमको ये बता दें कि कीवर्ड जितने भी हैं जावा में वो सब स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, और कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है कंपाइलर्स को, ओके। तो फॉर देखा जाए तो फॉर एक कीवर्ड हो सकता था अगर एफ स्मॉल से। विच वन बिलो इज अ कीवर्ड, तो इसमें अगर देखा जाए तो एक वाइल कीवर्ड है और एक क्लास इटसेल्फ अ कीवर्ड, ये भी कीवर्ड है। एरे कीवर्ड नहीं है, इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ओके। तो इसे कीवर्ड की कैटेगरी में नहीं रखा, बस ये दोनों हो सकते हैं तुम्हारे कीवर्ड। तो अगर तुम इस पर आंसर करते हो तो वो भी सही है, और अगर तुम इस पर आंसर करते हो तो वो भी सही। क्लास इज अ कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास, एंड वाइल इज अ कीवर्ड यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ लूप। तो ये दोनों हो सकते हैं, ओके। विच वन बिलो इज अ लीगल आइडेंटिफायर। तो लीगल का मतलब होता है जो सही हो। तो कोई भी कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये एक कीवर्ड है। और अगर हम लोग आइडेंटिफायर के रूल्स की बात करें तो एज अ स्पेशल सिंबल डॉलर और अंडरस्कोर अलाउड है। तो इसमें तो डैश आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और हाँ, कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट। तो ये हमारा डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ये, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। डॉलर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और डॉलर 2 भी हो सकते हैं, और डबल अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर। और डॉलर और अंडरस्कोर दोनों आ सकते हैं साथ में, वो भी एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा, ओके। फुल फॉर्म ऑफ जेडीके। जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, एंड जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम एरर। जब हम ओरेकल की साइट पे जाते हैं, ओरेकल क्या है, अर्लियर जावा वाज द पार्ट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम। जो जावा का डेवलपमेंट हुआ था वो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने किया था। जेम गॉसलिंग वाज द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, जिसका नाम था सन माइक्रोसिस्टम। उस कंपनी में रहते हुए जेम गॉसलिंग ने जावा का डेवलपमेंट किया, बट बाद में लेटर ऑन उस कंपनी को ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया। तो नाउ अगर हम करंट टाइम की बात करें तो जावा इज अ पार्ट ऑफ ओरेकल। ये बताने का पर्पस क्या था, एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें जावा से रिलेटेड कुछ भी डाउनलोड करना हो तो यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल साइट ओरेकल।
तुम्हें ऑरेकल की साइट पे जाना होगा, वहीं से तुमको जावा के कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स मिल सकते हैं, या ब्लूजे की अगर तुम्हें जरूरत है तो ब्लूजे भी इसी साइट के अंदर रखा हुआ है। तो ऑरेकल इज नाउ प्रोवाइडिंग ऑल द जावा एग्जीक्यूशन रिलेटेड मटेरियल। तो हमें ऑरेकल की साइट पे विजिट करना होता है, वहां से हम जेडीके डाउनलोड करते हैं। जब हम जेडीके डाउनलोड करते हैं तो जावा डेवलपमेंट किट, इसी के अंदर तुम्हारा जेआरई होता है। जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो रनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जावा डेवलपमेंट किट के अंदर कंपाइलेशन और जेआरई दोनों होता है। तो मतलब ये पूरी किट अगर हम इंस्टॉल कर लें तो हम एक प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं और रन भी। बट अगर हम जेआरई सिर्फ डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम प्रोग्राम को, कंपाइलेशन की फैसिलिटी और लिखने की फैसिलिटी हमें नहीं मिलेगी। तो जनरली एज अ गुड प्रैक्टिस हम जेडीके पूरा इंस्टॉल कर लेते हैं, बिकॉज हमें प्रोग्राम लिखना भी है, कंपाइल भी करना है और एग्जीक्यूट भी करना है। तो अगर देखा जाए तो जावा 3 स्टेप्स में एग्जीक्यूट होता है। नंबर 1, सोर्स कोड। इसका मतलब है कि वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम, नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड स्टेप है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन मींस ऑल द सिंटैक्स रिलेटेड एरर विल बी चेक्ड। नंबर 3 फेज होता है हमारा एग्जीक्यूशन फेज, और एग्जीक्यूशन जो है वो जेवीएम के थ्रू होता है, और जेवीएम एक इंटरप्रेटर है। तो अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करे जाते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। ओके, इससे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और देख लिया। नाउ अगर हम लोग लिटरल्स की बात करें तो लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट, हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो समझते हुए हम लोग इसको कर रहे हैं। और जो लिटरल्स होते हैं, अगर कैरेक्टर लिटरल की बात की जाए तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से डिनोट होता है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं। तो अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिखा हुआ है तो सर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में तो ये भी लिखा है, करेक्ट। बट अगर हम कैरेक्टर लिटरल की बात करें तो एक से ज्यादा कैरेक्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में नहीं आ सकते। तो दिस इज इनवैलिड। दिस इज ऑल्सो इनवैलिड क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा मींस स्ट्रिंग लिटरल बट नॉट अ कैरेक्टर लिटरल। ये भी इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज अ परफेक्ट आंसर। अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई एस्ट्रिक भी हो सकता है, लाइक डिजिट भी हो सकती है। दीज आर ऑल वैलिड कैरेक्टर लिटरल, ये भी हो सकता है। और अगर तुम ये सब देखो तो ये सब तुम्हारे कैरेक्टर लिटरल। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ज्यादा डिटेल, आप बहुत ज्यादा लेंथी क्लास नहीं लेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, बस जल्दी ओवर कर देंगे 1 घंटे के अंदर। ठीक है, हेलो हाउ आर यू, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पीक्यू। अब इसको अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसको हम जावा में सॉल्व करेंगे, बस 25 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये शीट तुमको अपने आप से आगे करनी है, देन आई विल डिस्कस इन अ रेगुलर क्लास। ओके, तो नाउ हमें ये प्रिंट करना है, तो इसे हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम लोग गए, और जाने के बाद में जस्ट मोमेंट, ठीक है। ओके, फर्स्ट, और यहां पर हमने ये सब डिलीट कर दिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हमने इसे पेस्ट कर दिया। ओके, विद दिस इंटेंशन कि हमारा ये आउटपुट आ जाए। ओके, जस्ट अ मोमेंट, यहां पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, एक और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, एक और डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक और डबल इन्वर्टेड कॉमा, जैसा हम एज अ नॉर्मल डेवलपर सोच रहे हैं, एज अ नॉर्मल यूजर कि आउटपुट आ जाए, बट इट विल नॉट प्रोड्यूस द आउट। सी रीजन क्या है? ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, अगर तुम इसे स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन हो या क्लोज हो, ये एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। और जितने भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं दे कम्स अंडर अ कैरेक्टर सेट। ओके, पॉइंट नंबर 1। और जितने भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टली स्क्रीन पर नहीं आते, उनको लाने के लिए हमें बैकस्लैश का यूज करना होता है। एंड बैकस्लैश क्या है सर? बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस कहलाता है। escape sequence, it is used to print all the
नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर लाइक डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओपन और क्लोज और स्लैश। अगर बीच में स्लैशेस भी चाहिए हैं तो स्लैशेस इज ऑल्सो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ओके, तो इन सब चीजों को लाने के लिए तुम्हें स्केप सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर तुम्हें ये वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा स्क्रीन पर दिखाना है तो इससे पहले तुमको एक स्लैश लगाना पड़ेगा, और अगर तुम्हें ये वाला भी इन्वर्टेड कॉमा दिखाना है जो कि क्लोजिंग है तो उससे पहले भी एक। ठीक उसी तरह से इससे पहले और इससे पहले, होप यू अंडरस्टैंड। इससे पहले मतलब हर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले तुमको एक बैक स्लैश दिखाना ही पड़ेगा। ये बैक स्लैश इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करेगा। नो इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली ओके। और ये वाले डबल इन्वर्टेड कॉमा का काम क्या है? ये वाले डबल इन्वर्टेड का कॉमा है कि ये पूरी चीज स्क्रीन पर जा रही है। ओके, तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो इस डबल इन्वर्टेड कॉमा का क्लोजिंग है। नाउ जस्ट वांट टू कंपाइल, देयर इज नो एरर। अब वैसा डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए जैसा हम सोच रहे हैं। नाउ इट्स फाइन, करेक्ट, दिस इज सेम आउटपुट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ये है जिसे आप नोट कर लेंगे। तो एवरी डबल इन्वर्टेड कॉमा इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, सो इट शुड बी कम along with the backslash, and backslash here is the escape sequence. ये इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, इसका अपना कोई प्रिंटिंग इंटेंशन नहीं है कि ये प्रिंट होगा। ये सिर्फ इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को दिखाने के लिए एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। ऑलराइट, समझ में आया? पॉइंट इज क्लियर? टेल मी, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर हमें लिखना सर। है, हमें ये लिखना है, जस्ट अ मोमेंट। एक टॉपिक है, जैसे मान लो हमें लिखना है, आई एम जस्ट टेकिंग द टॉप स्टूडेंट्स, मतलब जो सामने दिखाई दे रहे हैं, दिशा, और दिशा के बाद बैकस्लैश, फिजा, बैकस्लैश, हसन, स्लैश स्लैश, मुर्तजा, और एक और आ जाए कोई, मुर्तजा के बाद नकुल, नकुल सर शीना। नीना। ओके, तो हमें हर नाम के पहले एक बैकस्लैश चाहिए। बट सर बैकस्लैश चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, व्हाट्स अ बिग डील। इसे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट प्रिंटिंग हियर, गुड एग्जांपल। ओके, देखो ये जो नाम मैंने लिखे हैं बस ऐसे ही रैंडम लिख लिए हैं। ओके, इसका मतलब जिनके नहीं लिखे हैं, ऐसा नहीं कि उनको मैं पसंद नहीं करता, ठीक है। अब यहां पर लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट, और उसके बाद यहां पर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, करेक्ट। तो अब अगर इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दें, ठीक है, जैसा हम सोचेंगे, हमारी फर्स्ट अप्रोच तो यही है, हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब अगर हम इसे कंपाइल करते हैं, सी, अब देखो ये जो स्लैश है ये प्रिंट नहीं हो रहा है। स्लैश क्यों प्रिंट नहीं हो रहा? क्योंकि स्लैश भी एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, ये भी स्क्रीन पर डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जब तक सिंटैक्स एरर हमारे प्रोग्राम की इरेज या रिमूव नहीं होंगी, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज पे जा ही नहीं सकता। तो अगर तुम्हें ये स्लैश लाना है तो इससे पहले एक स्लैश और लाना पड़ेगा। अब देखो इन दोनों स्लैश का मतलब क्या है, सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्लैश है जो तुमने पहले लगाया है, ये एस्केप सीक्वेंस है, क्योंकि जो एस्केप सीक्वेंस होता है वो भी स्लैश से ही डिनोट होता है, और ये जो दूसरा है इट्स अ नॉर्मल स्लैश। जो तुम स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हो, तो इस नॉर्मल स्लैश को प्रिंट करने के लिए ये एस्केप सीक्वेंस वाला स्लैश सपोर्ट कर रहा है। देखने में तो दो स्लैश लग रहे हैं बट दोनों के पर्पस अलग है। फर्स्ट स्लैश इज एस्केप सीक्वेंस,
सेकेंड स्लैश इज अ नॉर्मल स्लैश विच यू वांट टू प्रिंट। तो सर इसका मतलब तो हर एक के बाद 2 लगेगा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली लाइक दैट। नाउ व्हाट विल हैपन, सबसे पहले तो एरर रिमूव हो गई। अब अगर एरर रिमूव हो गई देन वी कैन गो फॉर एग्जीक्यूशन। तो अब जैसे ही हम एग्जीक्यूशन आएंगे तो फिर सारे नाम के साथ एक एक स्लैश आ रहा हो, दिशा एंड फैजा, देन हसन, देन मुर्तजा, देन नकुल, देन शीना, राइट? तो ये जो स्लैश था, नाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ प्रिंटिंग स्लैश। Now we have done a great discussion on escape sequence. Okay, so let me clear all this. Okay, now fine. Okay, write down all the primitive data type with the sizes we have done. Size हमने ये लग कर लिया, क्वेश्चन कवर्ड है। फ्लोटिंग लिटरल आर ऑल्सो कॉल्ड रियल लिटरल। यस, फ्लोटिंग लिटरल को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है रियल लिटरल। रियल एंड फ्लोटिंग लिटरल्स आर सेम थिंग। ओके, सेम थिंग, तो इट इज ट्रू। The real literal in a fractional must have at least 1 digit before a decimal point and at least 1 digit after the decimal। ये रूल बता रहे हैं कि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कैसे बनता है। क्या ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होता? नहीं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल तभी होगा जब डेसिमल से पहले एटलीस्ट 1 डिजिट हो और डेसिमल के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट हो। दिस इज अ कंप्लीट फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल और अ रियल लिटरल। इसी को हम ऐसे मानेंगे। अगर हम ऐसे छोड़ दें, नॉट पॉसिबल। क्लियर? अगर हम ऐसे छोड़ दें तो ये भी पॉसिबल नहीं, बट 0 लगाना जरूरी। नाउ अच्छा, अब देखो लिटरल्स की अगर हम क्या, बस 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 नाउ वी हैव डन ये वाला, बस बस ये छोटा सा बस और पार्ट। ओके, सी रियल लिटरल फ्रैक्शन हो गया। विच वन इज अ लीगल ऑक्टल लिटरल? ये ऑक्टल क्या है? देखो अगर हम लिटरल्स की बात करें तो एक होता है डेसिमल, एक होता है ऑक्टल और एक होता है हेक्साडेसिमल। इसकी डिटेल मैंने थ्योरी पार्ट 1 में बहुत डिटेल में दिया है, ठीक है। डेसिमल होते हैं आपके 0 से लेकर 9 तक। ऑक्टल का मतलब होता है 0 से लेकर 7 तक। और हेक्सा होते हैं आपके 0 से लेकर 9 तक। ये नंबर सिस्टम्स होते हैं, इनको हम लोग नंबर सिस्टम्स कहते हैं। बहुत डिटेल में नहीं है बट थोड़ा सा है, समझ लें। 0 से लेकर 9 तक तो एज यूजुअल होते हैं हेक्साडेसिमल, बट इसमें 10 को 10 ना लिख करके ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है, 12 को सी लिखा जाता है, 13 को डी लिखा जाता है, और 14 को ई लिखा जाता है, और 15 को एफ लिखा जाता है। उन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी करके जाते हैं। इनकैप्सुलेशन, क्लास एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑब्जेक्ट एंड क्लास, इनकी डेफिनेशन तो पूरा इंडिया पढ़ के जा रहा होगा, बट तुम्हें औरों से कुछ डिफरेंट स्टडी करनी। तो ये सारे टॉपिक्स तुम्हारी डिफरेंट स्टडी को लेकर आते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो अगर हम एक कॉमन नंबर 4 ले लें, सर इट्स अ मेजर मेजर प्रॉब्लम। तो 4 डेसिमल की कैटेगरी में भी आ रहा है, 4 ऑक्टल की कैटेगरी में भी आ रहा है, और 4 हेक्साडेसिमल की कैटेगरी में भी आ रहा है। तीनों में आ रहा है ना? तो सर ये कैसे इस 4 को हम डिनोट करें कि ये डेसिमल का 4 है, या ये ऑक्टल का 4 है, या ये हेक्साडेसिमल का 4 है? हाउ विल बी डिफरेंशिएट? जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, जैसे अगर हम बताएं ये 3 स्टूडेंट्स हैं, अगर तीनों स्टूडेंट्स को एक लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा सीएमएस का है, कौन सा क्राइस्टचर्च का है, कौन सा लामार्टिनियर का है? तो अब क्या किया गया, अगर किसी नंबर से पहले कुछ नहीं लगा हुआ है तो वो डेसिमल है। अगर 0 लगा दें किसी नंबर से पहले तो वो ऑक्टल हो जाएगा। ऑक्टल का मतलब होता है प्रीफिक्स में अगर 0 आ जाएगा, सो दैट नंबर विल बी बिहेव लाइक अ ऑक्टल। और अगर ओएक्स लगा दिया जाए किसी नंबर से पहले तो वो हो जाता है हेक्साडेसिमल। बस आपको इन 3 चीजों को याद करना है, द स्टोरी यही कहती है। कंक्लूजन इज दैट। तो अब देखो विच वन इज अ लीगल ऑक्टल? ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो 0 वाला, three,
अगर हेक्साडेसिमल की बात करते तो OX वाला, और अगर डेसिमल की बात करते तो वी हैव अ 2 डेसिमल कैटेगरीज 123 एंड 8. डन, क्लियर. अब देखो Q विल टेक हाउ मेनी बाइट. सर Q एक कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर सर 2 बाइट लेता है. इंटीजर 12 while takes 4 bytes. Okay, so 29 is not a good figure. मतलब ठीक है, राउंड फिगर में हम लोग 30 डिस्कस कर लेते, then the class will over. 30. What are the Boolean literals? Tell me, what are the Boolean literals? True and false. That's it. There are only 2 Boolean literals, either true or false. What is the default value of all primitive data types? I have a different interface, Excel. 200 यहां पर लिख रहे हैं हम, और इसको स्क्रीनशॉट ले लो. ऑक्टल हेक्साडेसिमल और डेसिमल का जो डिस्क्रिप्शन है इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, नाउ बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन. ये हमारे डेटा टाइप्स हैं. और हर एक डेटा टाइप की कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं. बस, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. डिफॉल्ट वैल्यूज. ओके, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं? अगर हम कोई वैल्यू इनमें स्टोर ना करें तो अपने आप से ये क्या वैल्यू ले लेते हैं? आई एम टेलिंग, जस्ट अ मिनट. नाउ बाइट 0 लेता है, शॉर्ट भी 0 लेता है, और INT भी 0 लेता है. लॉन्ग 0 L लेता है. L इंडिकेट्स लॉन्ग. ये 0 L भी हो सकता है और 0 स्मॉल l भी हो सकता है. दिस इज कैपिटल L और स्मॉल l, नो प्रॉब्लम, दोनों हो सकते. ऑलराइट. फ्लोट लेता है 0.0f. ध्यान रखना, कैपिटल F भी हो सकता है और 0.0 स्मॉल f भी हो सकता है, दोनों है. डबल क्या लेता है? 0.0 d. कैपिटल D भी हो सकता है और स्मॉल d. कैरेक्टर होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा \u 4 टाइम्स 0. ये 4 टाइम्स 0 क्या है? इट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कैर. ये इंडिकेट करता है नल वैल्यू. नल मतलब कुछ नहीं. जब कोई कैरेक्टर आएगा, तो ये वैल्यू उससे रिप्लेस हो जाएगी. बुलियन डिफॉल्ट में लेता है फॉल्स. ऑल राइट. अच्छा, यूं समझ लो, इसको फॉल्स याद करने का तरीका ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है तो शुरू में जब भी आप उसे परचेस करते हैं तो वो फॉल्स स्टेट पे होती है. फॉल्स का मतलब है कि उसमें कोई करंट नहीं जा रहा. ओके, कोई करंट उसमें नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स स्टेट में. कभी भी आप फैन को चलता हुआ लेकर नहीं आते, बंद करके पैक करके आते हैं. दैट मींस यू आर परचेजिंग ऑल द मशीन्स इन ऑफ मोड. ओके, तो दिस इज योर डिफॉल्ट. थैंक यू सो मच. ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड डिस्कशन और हमने आज का दिन भी यूटिलाइज कर लिया. ये शीट तुम्हारे पास है. हाँ, देखो अब यहां पर आ गया विच वन इज द हेक्साडेसिमल, तो ये तुम्हारा OX हो जाएगा. और ये देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा ट्रू और विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा ट्रू, ये तुम्हारा स्ट्रिंग लिटरल है. और जो विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज कॉल्ड योर बूलियन लिटरल. बाकी इन सबको करना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे तुमको अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन मिलते जाएंगे. तो डाउनलोड दिस शीट, दिस विल बी अ लास्ट शीट फ्रॉम माय साइड. और अराउंड 100 200 एंड 300 and one more 100 400 MCQ
I have distributed to you all. 400 MCQ कौन कौन से तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सबको बस एक बार मैं बता रहा हूं।